رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا کا پورا سمائے دنیا پہلا آسمان جو ہے ہمارا اس کے اوپر نازل کر دیا. اس کے لیے لفظ انزلہ، انزلہ ینزل انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اتار دے، اور نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتار. اعلام، عالم یعلم اعلاما، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا، تم جانو تمہارا کام. تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات. تعلیم اس کو کہتے ہیں. تو انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے. فإنه نزله على قلبك، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے نزلناہ تنزیلا رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے کی، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا، یہ حال ہے. یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. از خود روشن، بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، از خود واضح. تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیز ہے. یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. ہاں، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے. والفرقان، بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے. حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے. بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل، یہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان. ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا. یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہٰذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازماً روزہ رکھے. میں بیان کر چکا ہوں، یہ وجوب علی العین ہے، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب دیکھیے، یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا، جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تطوعاً رکھا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا. موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ، وہ پلٹ لیجئے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دی، اور اس کا قیام اللیل، راتوں کو کھڑے رہنا، یہ مرضی پر چھوڑا. جو کر سکے، جو بھی ہمت کرے، ترغیب و تشویق ہے. اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے. یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہے. لیکن اب دیکھیے، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں، یعنی قیام اللیل، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه. اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی. اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان من صام رمضان. یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، جو ماجرا ہوا، اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں. اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے، حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی، حقائق واضح ہو جائیں گے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی
बिन्यामीन अहब्बु इला अबीना मिन्ना, ये हमारे वालिद को ज्यादा महबूब है, हमसे ज्यादा मोहब्बत इन दोनों से। और नान उसवा, जबकि हम एक बड़ी जमात है, ताकतवर, बड़े थे, जवान थे, 10 थे। और जाहिर बात है कबायली जिंदगी में तो आपको मालूम है कि बाजू जो होते हैं, बेटे जवान जो हो, वही तो असल में ताकत की बुनियाद होते हैं। जिसके जितने बाजू है उतना ही वो साहिब इज्जत है। तो हम हैं 10 जवान और ये 2 छोटे, मोहब्बत इनसे ज्यादा हो रही है। इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, यकीन हमारे अब्बा जान कुछ बहक से गए, मालूम होता है कुछ सठिया गए। उख्तलू यूसुफ, कत्ल कर दो इसमें, अब इतरहू हो अंदर, या इसे कहीं दूर किसी मुल्क के अंदर फेंक दो, दिला वतन कर दो। यखलो लकुम वजहु अबीकुम, ताकि तुम्हारे वालिद की जो तवज्जुहात है, इनायात है, तुम्हारी तरफ हो। इसकी तरफ से हटकर जो सारी इनायात का मरकज और मंबा बना हुआ यूसुफ, तो ये जब यहाँ नहीं रहेगा, ये कांटा निकल जाएगा, तो फिर ये है कि वो इनायात जो है हज़रत याकूब की, वो हमारे हिस्से में आएगी। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिह, ये कड़वा रूट तो कर गुजरो, फिर बाद में नेक बन जाना। यानी दिल में मलामत भी है। ज़मीर कह रहा क्या करने लगे हो, क्या सोच रहे हो, देखिए अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो। लेकिन ये कि फिर ये कि इंसान जो है अपने आप को जब कोई नफ्स से, जैसे कि हम सूरह माइदा में पढ़ा है, फतव्वत लहू नफ्सुहु कत्ल अखी, काबील के नफ्स ने उसे आबादा कर ही लिया अपने भाई के कत्ल करने पर। तो अब इन लोगों का भी जो है ज़मीर मलामत जब कर रहा था, तो उनका ठीक है भाई, ये तो कर गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद नेक हो जाएंगे, तौबा कर लेंगे, फिर कफारा भी अदा कर देंगे, फिर जिस तरह भी होगा तराफी भी कर देंगे अपने। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ा, कहा उनमें से एक कहने वाले ने, नहीं नहीं कत्ल न करो यूसुफ को। ये यहूदा थे जो सबसे बड़े, और यही से लफ्ज़ यहूदी बन, सबसे बड़े बेटे हज़रत याकूब के यहूदा, और ये शरीफ नफ्स। उन्होंने कहा नहीं कत्ल मत करो। वल्क़ू फ़ी ग़याबतिल जुब्ब, हाँ किसी जो बाउलियां पिछले जमाने में होती थी, कुआं नहीं असल में कहना चाहिए, बाउलियां आपको पता नहीं, बहुत से लोग जानते नहीं होंगे, वो एक बहुत गहरा सा जो है वो खोदते थे ताकि पानी तक पहुंच जाए, और फिर जहां पानी की सतह होती थी उसके आसपास ताकचे बने होते, तो उन ताकचों में से ग़याबतिल जुब्ब, उनमें से किसी में इसको डाल दो, ताकि फिर कोई रस्सी नीचे फेंकेगा और कोई काफिला आएगा, उसका कोई पानी लेने वाला आएगा, ये उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चला जाएगा, वो काफिला अपने साथ ले जाएगा जहां जा रहा होगा, तो हमारी जान छूटे, तो हम कत्ल के मुजरिम नहीं। वल्क़ू फ़ी ग़याबतिल जुब्ब यल्तक़ितहु बादु सय्यारा, ले जाएगा उसको, कोई उठा ले जाएगा कोई काफिला। इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम करने ही वाले हो, यानी अगर तुम तुल गए हो। अब जाहिर बात है कि बाकी 9 भाई अगर तुले हुए थे तो बड़े भाई की कुछ बस नहीं गई, उसने कहा अच्छा कम से कम ये करो, कत्ल तो ना करो, इसको किसी कुएं की, किसी बावली के ताकचे के अंदर रखा। क़ालू या अबाना मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून, अब उन्होंने कहा कि अब्बा जान क्या वजह है कि आप हम पर भरोसा नहीं करते यूसुफ के मामले में, कभी हम पर एतमाद नहीं करते, हमारे पास अकेला नहीं छोड़ते, उसे क्या मसला है। व इन्ना लहू लनासिहून, हम तो उसके बड़े खैरखां हैं। अरसिलहु माना गदन, कल जरा हमारे साथ भेजिए, हम जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, तो गदन भेज दीजिए। यल्ता यलअब, वो भी चरे चुगेगा, खाए पिएगा, दरख्तों के ऊपर चढ़ेगा, खेलेगा कूदेगा, और कोई फल वल खाएगा। यल्ता जैसे चढ़ना चुगना, वह यलअब, और खेलेगा। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी, हज़रत याकूब ने फरमाया मुझे इसका बड़ा अंदेशा है, तशवीश है, अन तज़हबू बिही, कि तुम उसे ले जाओ। व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़ि'ब, और मुझे अंदेशा ये है कि कहीं उससे भेड़िया ना खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, और तुम उससे गाफिल हो, कहीं तुम तो अपने धंधों में लग जाओ, मुनहमिक हो जाओ, वो कहीं अकेला रह जाए, कोई भेड़िया आकर उसे खा जाए। क़ालू लइन्नका लहु ज़ि'ब व नहनु उसबा इन्ना इज़न लख़ासिरून, अब्बा जान क्या बात कर रहे हैं, अगर उसे भेड़िया खा जाए, जबकि हम एक जवान ग्रोह हैं, हम 10 आदमी हैं, हमारी पूरी टीम है, जमात है, तो फिर तो हम तो बड़े निकम्मे लोग हुए, बड़े खिसारे वाले लोग हुए। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ, और जब फिर वो उसको ले गए और फिर अब वो मुत्तफिक हो गए। अजमऊ के बाद अला का सिला जो है यहाँ पर महसूस है, अला अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्ब, उन्होंने अपनी ये बात अब पूरी जमा कर ली, अपना पूरी राय एक करके, एक आकर के, और वो ये कि अब उसे ग़याबतिल जुब्ब के अंदर रखने चले। व औहयना इलैहि, हमने उस वक्त वही की इसको, लतुनब्बिअन्नहुम, अब इसको हम इल्हाम कहेंगे, अभी जाहिर बात है कोई नबूवत की उम्र नहीं है। औहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, तुम ये बात इनको जितलाओगे, एक दिन आएगा कि तुम जितला दोगे अपने भाइयों के, तुमने मेरे साथ किया था। अब इसमें जो बलागत है इसकी क्या मानी है, तुम हलाक नहीं होगे, तुम्हारा बाल बीका नहीं होगा, तुम्हारी हम हिफाजत करेंगे, एक वक्त आएगा कि ये तुम्हारे पास आएंगे और फिर तुम इन्हें जितलाओ। तो गोया कि पूरी दास्तान जो है एक उनकी हौसला अफजाई के लिए वो सारा एक लफ्ज़ के अंदर है, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, और उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कौन उनसे बात कर रहा है। तो वजाऊ अबाहुम इशा यबकून, शाम को वो आ गए रोते हुए अपने अब्बा जान के पास, हजरत याकूब के पास। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु, उन्होंने कहा अब्बा जान हम गए थे, जरा दौड़ लगा रहे थे, मुकाबला कर रहे थे दौड़ने का। वह तरकना यूसुफ इंदा मताइना, और हमारा जो सामान वामान था, कोई कपड़े वपड़े हमने रखे थे इजाफी उतार कर, दौड़ना जो था, तो वहां हमने यूसुफ को छोड़ दिया था। फाकलहु ज़ि'ब, तो उसे खा लिया एक भेड़िए ने। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और आप हमारी बात मानेंगे तो नहीं।
वलाउ कुन्ना सादिकीन, खा हम कितने ही सच्चे हों, आपने माननी तो नहीं है बात, लेकिन हम क्या करें, हुआ ये। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़ीब, और कोई झूठ मूठ का खून उसकी कमीज के ऊपर लगा के ले आए। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, हज़रत याकूब ने फरमाया नहीं, बात कुछ और है, तुम्हारे जियों ने, तुम्हारे अनफुस, तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बड़ी बात को हल्का कर दिया है। तुमने कोई बहुत बड़ा गलत इक़दाम किया है और तुम्हारे नफ्सों ने उसके लिए तुम्हें आमादा कर दिया है। फसब्रुन जमील, लेकिन जाहिर बात है कि अब 10 बेटे हैं, हजरत याकूब अकेले हैं, बूढ़े हैं। फसब्रुन जमील, मैं अब क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि सब्र करूँ खूबसूरती के साथ, और देखूँ अल्लाह ताला इसमें से क्या बरामद करता है। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो उस पर तो जाहिर बात है कि मैं अल्लाह ही से मदद मांग सकता हूँ। वजात सय्यारतुन, अब कुछ अरसे के बाद वहां एक वो काफिला आ गया। जात सय्यारतुन फारसलू वारिदा, उन्होंने भेजा अपने आगे चलने वाले को। ये पुराने जमाने में होता था, काफिला उससे आगे आगे जो है, इसको औरत कहते हैं वारिद, वो जाकर जो है वहां पर देखता था कहाँ कुआं है, पानी कहाँ है, कहाँ अंडा पड़ाव होगा। फारसलू वारिदहुम, अपने पानी भरने वाले को भेजा। फादला दलवा, उसने अपना डोल जो है वो नीचे उतारा। काला या बुशरा, अब उसको पकड़ लिया हज़रत यूसुफ ने, उसने खींचा, वो समझ रहा था पानी खींच रहा हूँ, वो हज़रत यूसुफ आ गए। या बुशरा हाज़ा गुलाम, ने वहीं से शोर बचाया, आवाज दी क्या बशारत हो, ये तो हमें गुलाम मिल गया, लड़का मिल गया। वासर्रूहु बिदाअह, और उन्होंने छुपा लिया उसे एक पूंजी समझ कर, ये तो अच्छी दौलत मिली है, इसे बेचेंगे, बेच के पैसे खड़े करेंगे, छुपा लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता था जो वो कर रहे हैं। वशराहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, और मिस्र पहुंचकर उन्होंने बेच दिया उसको बड़ी थोड़ी सी कीमत पर। दराहिम मादूदा, गिनती की चवन्नियां, दिरहम जो है उनके यहाँ दिनार का चौथा हिस्सा होता था, तो दराहिम मादूदा जो है चंद चवन्नियों के एवज वो फरोख्त कर दिया। वह कानू फीह मिन ज़ाहिदीन, और उसके मामले में तो वो बहुत ही कानिअ थे, यानी चूंकि अगर तो किसी की इन्वेस्टमेंट हुई हो, 1000-2000 का खरीदा हो, तब तो आदमी उसकी कीमत अपने इन्वेस्टमेंट भी निकाले उसमें से और फिर मुनाफा भी लेना चाहे, ये तो मुफ्त का माल था। दूसरे ये अंदेशा हर वक्त घर का लगा हुआ था कि कहीं जो है इसके वारिस ना आ जाए, तो जल्द अज जल्द बेचकर जो भी मिले पैसे खड़े करो। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, और जिस शख्स ने खरीदा उन्हें मिस्र से, मिस्र में ये तो अजीज मिस्र था, यानी कोई बहुत बड़ा अफसर, बादशाह नहीं, लेकिन ये कि वहां की जो भी हायरार्की थी उसके अंदर कोई बहुत अहम मकाम पर। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, और जिस शख्स ने खरीदा उन्हें मिस्र में, लिम्राते ही, अपनी बीवी से कहा अकरमी मस्वाह, इसको जरा अच्छे तरीके पर रखो, आसा यनफाना, हो सकता है ये हमारे लिए नफा बख्श हो, ये भी हो सकता है कि हम इसे भी बेच दे तो हमें दौलत ज्यादा मिल जाए, और नतखिदहु वलदा, मालूम होता है शायद औलाद नहीं थी, हम इसे अपना बेटा ही बना लेंगे। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इस तरह हमने जमीन में यूसुफ के लिए तमक्कुन, ठहराव की जगह पैदा कर। अब ये कि पहुंच गए हैं जो उस वक्त की जो मुतमद्दन तरीन ममलकत है, मिस्र की ममलकत है, उसका एक निज़ाम है, उसमें बादशाहत है, उसका पूरा जो है उसका पाशी का निज़ाम है, उसमें तमद्दुन के गहवारे में पहुंचा दिया, और वहां पर भी किसी झोंपड़े में नहीं, किसी बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़े साहिब हैसियत इंसान के घर में पहुंचा दिया। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, और ताकि हम उसे सिखाएं बातों की तह तक पहुंचना। यानी जाहिर बात है कि अगर वो कोई बहुत बड़ा ओहदेदार था, बहुत बड़ा अफसर था, तो वहां पर लोग आते रहते होंगे, गुफ्तगूएं होती होंगी, उमूर ममलकत पर बहसें होती होंगी। अब ये वहां पर एक खादिम की हैसियत से हैं, वो बातें सारी सुन रहे हैं, तो गोया कि उसमें उनके लिए तरबियत का सामान अल्लाह ने कर दिया कि कहा किसी अगर देहाती में रहते या कहीं सहरा में रहते, कहा ये तमद्दुन के एक गढ़ में और एक ऐसी जगह पर जहां पर बैठकर सारे मशवरे होते हों, गुफ्तगूएं होती हों और दूसरे मुल्कों की खबरें आती हों, इससे उनके इल्म के अंदर मालूमात में भी इजाफा हुआ। और ये कि हालात और वाक़यात का तज्ज़िया करना, उससे इस्तिंताज करना, नतीजा निकालना, अल्लाह ने ये चीज़ उन्हें सिखा दी। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला तो अपने मामले पर, अपने हुक्म पर, अपने फैसले पर गालिब है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब वो अपनी पूरी पुख्तगी को पहुंच गए तो हमने उन्हें हुक्म और इल्म दोनों दी। इससे मुराद नबूवत है, हिकमत भी दी, इल्म भी। वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरीके से हम मुहसिनीन को बदला देते हैं, अच्छा बदला देते हैं। वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा, और फुसलाने की कोशिश की उस औरत ने जिसके घर में वो थे, वही अजीज मिस्र की बीवी, वो उन पर फरिश्ता हो गई। फी बैतिहा अन नफ्सिही, उनके जी से फुसलाने की कोशिश की, उन्हें गुनाह पर आमादा करना चाहा, यहाँ तक कि वग़ल्लक़तिल अब्वाब, एक मौके पर उसने दरवाजे बंद कर दिए। वक़ालत हैत लक, और बोली कि जल्दी करो। क़ाल मआज़ल्लाह, हज़रत यूसुफ ने फरमाया अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, यहाँ रब्बी दोनों तरफ जा सकता है, एक तो अल्लाह की तरफ भी, दूसरे ये कि मेरा आका, ये लफ्ज़ जो है आका के लिए, बादशाह के लिए भी इस सूरत में बार बार आया है कि मैं खयानत करूँ अपने आका की, उसने मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया है, अच्छी तरह रखा है, मैं ये भी नहीं कर सकता। और ये भी हो सकता है अल्लाह ने सारा बंदोबस्त किया है, अल्लाह ही ने तो सारा मक्कन्ना लियूसुफ़ा, तो दोनों तरफ ये लफ्ज़ जा सकता है। मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, गुनाहगार और ज़ालिम लोग जो है फलाह नहीं पाया करते। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, और वो तो उनकी तरफ लब की, या यूं समझिए कि उसने तो इरादा किया उसका, वह हम्मा बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिही, और वो भी करता अगर न देख लेता अपने रब की एक दलील। यानी ये कि यूसुफ जवान भी थे, यूसुफ जो है
बहरहाल इंसान थे, तबे बशरी की बुनियाद पर उनके अंदर भी वो एक दाहिया पैदा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला का खास इंतजाम ये हुआ कि कोई खास उस वक्त अल्लाह ने उन्हें अपनी ऐसी निशानी दिखाई, बुरहान दिखाई। रिवायात में आता है कि दीवार पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल जाहिर हुई और वो उंगली से इशारा कर रहे थे कि बात रहना। तो ये तौरात के अंदर है। तुम्हारा कुरान मजीद भी कोई इसकी यानी नफी नहीं है इसमें, बल्कि हो सकता है बुरहान रब्बी, तो ये अल्लाह की तरफ से ये बात दिखा दी गई हो, कोई अनहोनी बात नहीं। और ये बात को हम्मत भी वहम्मा बिहा, यहाँ पे लौला बुरहान वो भी पढ़ते हैं। यानी ये चीजें जो है बहरहाल जहाँ तक फितरत इंसानी का तकाजा है, इसमें साबित कदम रहना आसान काम नहीं है। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सू, और ये इसलिए कि हम फेर दें उससे बदी का रुख वल फहशा और बेहयाई का। हमने खास एहतमाम किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत की। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, यकीनन वो हमारे बड़े मुखलिस बंदों में से थे। ये मुखलिस और मुखलिस का फर्क नोट कर लीजिए। मुखलिस इसमें फाइल है, खुलूस करने वाला, और मुखलस वो जिसको खालिस कर लिया गया हो। अल्लाह के मुखलस बंदे वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने लिए खालिस कर लिया। तो ये अल्लाह के खास बंदे, चहीते बंदे मुखलस हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए खालिस कर लिया है। वस्तबक़ल बाब, वो दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी नीयत बुरी देखी और देखा कि वो तुली हुई है, उसके ऊपर शैतान का भूत सवार है, तो वो दरवाजे की तरफ लपके कि मैं भाग जाऊं। पीछे वो दौड़ी। कालत वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन, और दौड़ते इसमें ये हुआ कि उसने जो पीछे से पकड़ने की कोशिश की हजरत यूसुफ को, तो उनका कुर्ता जो है उसके हाथ में आ गया और वो फट गया। हजरत यूसुफ दौड़ रहे हैं, पीछे से वो कुर्ते का दामन जो है फट गया। वाल फया से ये दहा लदल बाब, और अचानक हो सकता है गैर मुतवक्के तौर पर, वक्त ऐसा न हो आमतौर पर आने का, उसका जो शौहर था, उसको उन दोनों ने देखा कि वो दोनों दरवाजे के ऊपर वो मौजूद आया। उन दोनों ने उसके शौहर को, उसके सरदार को, उसके आका को, उसके शौहर को लदलबाद दरवाजे के पास। कालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिक सूअन, अब देखिए ये है वो कि जो औरत के जो तिरत्तर जिसको कहते हैं मशहूर, फौरन जो उसने पैतरा बदला है, उसने कहा अपने शौहर से मुखातिब होकर, बड़ा सोचो क्या सजा होनी चाहिए उस शख्स की जो तुम्हारी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे। यानी ये कि ये जो यूसुफ है ये मुझ पर गोया कि मुजरिमाना हमला करना चाहता था और मैंने अपने आप को बचाया है। कालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिक सूअन इल्ला युस्जना, इसकी सिवा क्या सजा हो सकती है कि उसे जेल में डाल दिया जाए और अज़ाबुल अलीम, या उसे कोई और दर्दनाक अज़ाब दिया जाए। अब जाहिर है अपने दिफा के लिए हजरत यूसुफ को कुछ ना कोई बयान तो देना था। काला हिया रावदतनी अन नफ्सी, उन्होंने साफ बयान कर दिया कि खुद इसने मुझे गुनाह पर आमादा करना चाहा था और फुसलाना चाहा था मुझे मेरे जी से। वह शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, अब यह कि वहां कोई और था, कोई शख्स जो था उस औरत, उस जुलेखा उसका नाम आता है और रात में कुरान में कहीं नहीं है, इमरातुल अजीज तो आता है, उस अजीज की बीवी, बड़े अफसर की बीवी, लेकिन यह कि उसका कोई रिश्तेदार भी वहां मौके पर मौजूद था। तो उसने कराइन की जो गवाही होती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि अगर तो इसका कुर्ता फटा हुआ हो, शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, उस औरत के अजीजों रिश्तेदारों में से गवाही देने वाले ने एक ने गवाही दी, अगर इसका कुर्ता फटा होता सामने से फसदक़त, तो वो सच्ची होती, वह हुआ मिनल काज़िबीन, और ये झूठा होता। यानी अगर कोई मर्द हमला कर रहा है और औरत अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और उसमें जो है कहीं कुर्ता फटता है मर्द का, तो सामने का हिस्सा फटेगा। वह इनकाना कमीज़ो कुद्दा मिन दुबुरिन, और अगर उसकी कमीज है फटी हुई पीछे से, फ़कज़बत, तो वो झूठी है, वह हुआ मिनस सादिक़ीन, और वो सच है। अब ये भी आप दीजिए, क्रेडिट दीजिए बहरहाल के उसकी औरत के रिश्तेदारों में से किसी ने इतनी आदिलाना बात की है, इतनी हकीमाना बात भी की है, आदिलाना भी की है और हक की बात की है, तो मालूम होता है